गुड मॉर्निंग अपर रूम फैमिली। अपर रूम चर्च की ऑनलाइन सर्विस में हम आपका स्वागत करते हैं। पिछले संडे पास्टर जोशुआ ने हमें ये सिखाया कि परमेश्वर हमें चंगा करना चाहता है और हम आशा रखते हैं कि आपने आशीष पाई है। कैथरीन, कई बार हमारे जीवन में हम ऐसे परिस्थिति से गुजरते हैं वेयर एवरीथिंग सीम्स अगेंस्ट अस। अगर आप में से कोई भी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है तो आज का वचन आपके लिए है। Today, Pastor Moses David will be teaching us from the Word of God that one encounter with our Lord and Savior has the power to change your life. So don't go anywhere without listening to today's word. But before that, let us worship together as Brother Rajiv leads us into it. गुड मॉर्निंग चर्च। यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर ने आपको संभाल कर रखा है। टुडे एज वी बिगिन टू वर्शिप गॉड, I just have a scripture that I want to share with you. I just want to read it from the book of Matthew chapter 28. And before I read from Matthew 28, I want you to know that Jesus Christ, He died on the cross. यीशु मसीह को सलीब पर मार दिया गया, लेकिन मारने के बाद तीसरे दिन की घटना हम मत्ती उसके 28वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। And I would like to read this for you. It says, after the Sabbath ended, at the first light of dawn, on the first day of the week, Mary Magdalene went to take a look at the tomb. Suddenly, the earth shook violently beneath their feet as the angel of the Lord, Jehovah, descended from heaven. Lightning flashed around him and his robe was dazzling white. The guards were stunned and terrified, lying motionless like dead men. Then the angel walked up to the tomb, rolled away the stone, and sat on top of it. The women were breathless and terrified until the angel said to them, "There is no reason to be afraid. I know you are here looking for Jesus who was crucified. He isn't here. He has risen victoriously, just as he said." Hallelujah. Hallelujah. Do you know what this means? इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह कब्र में नहीं है, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। आज जब हम खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, I want you to know that He is a living God. He is a Savior. He is a Redeemer. हालेलुया। वो है यीशु मसीह जो हमें छुड़ाता है। हालेलुया। वो उसका जो लहू है वो हमारे पापों को ढांक लेता है। आमीन। हमारी जो शर्म है उसे वो हटा देता है, हमारे दर्द को चंगाई दे देता है। हालेलुया। हमारे दर्द को दूर करता है और हमें चंगाई देता है। आमीन। Are you excited to worship that Redeemer who lives for you and I today? Hallelujah. Amen. Come on, lift up the name of Jesus. आइए एक मिनट तक परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया। Oh Yeshua, we lift up Jesus, we lift up your name, the one who died but now who lives again. Oh Jesus, oh, just as you promised, you are alive, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you that you live again, Jesus. Thank you, Jesus. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Jesus. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Jesus. Thank you, Lord. Yeshu, tu महान। My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Jesus. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer
Let's worship Him. My Redeemer lives. जहाँ कहीं भी है ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाएंगे. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. Now raise the banner. Oh, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Hallelujah. Be rejoicing in the presence of the Lord. I know I know He rescued my soul. He did. His blood has covered my sin. I believe. I believe. My shame, My shame is taken away. my pain. My pain is in His name. I believe. I believe. Now raise the banner. I'll raise the banner. Oh, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer My lives. Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. I know He rescued my soul. I know He rescued my soul. He did. His blood has covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My shame is taken away. My pain. My pain is healed in His name. I believe. I believe. Come on, let's raise the banner. I'll raise the banner. Oh, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer My lives. Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer You lift my lives. burdens. You lift my burdens. I'll rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. My Redeemer lives. Jesus. My Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer lives. Jesus. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Jesus. My Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer lives. Jesus. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. We declare it. My Redeemer lives. My Redeemer lives. By faith declare it. My Redeemer
confession of our mouth, my Redeemer lives, my Redeemer lives, my Redeemer lives, my Redeemer lives. Hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. You are with us today, Jesus. You are with us today, in your glory and your splendor. What a beautiful name! What a beautiful name, Jesus. Oh, तेरे नाम की जय, तेरे नाम की जय, तेरे नाम की जय। That name is available to you today. आज इस समय वो नाम हमारे लिए है। अगर आप यीशु को नहीं जानते और अगर आज आप इस समय हमारे साथ बने हैं, लिफ्ट अप द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम को ऊंचा उठाएं। वो नाम आपके लिए है। जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं। बलहीन का सहारा, बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। ओ यीशु, तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु
योजनाएं सफल। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा, योजनाएं सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। यीशु नाम, ओ यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, आइए उसके नाम को भजे। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। जिस नाम में, जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु। come on, lift up your voices and say, जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हालेलुया। Let's love him. यीशु मसीह को प्रेम करें। Thank you Jesus. तुझे चाहते हैं प्रभु पूरे दिल से। हालेलुया। चाहे तुमको दिल से, गाए ये गीत मिल Tell it to him one more time. चाहे तुमको दिल से, गाए ये गीत मिल के, तेरे नाम यीशु नाम की जय। तेरे नाम, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में जिंदगी, जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। ओ जिस नाम में बंदगी, जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय।
You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all. What a powerful name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Oh, what a powerful name. What a powerful name. His name is Jesus. Nothing can stand against. Oh, your name is higher. Higher than any other. Higher than any sickness and disease, Lord. Oh, Lord. Oh, your name is great. Worthy of all the praise and honor, Jesus. Oh, what a beautiful name. What a wonderful name. What a wonderful name, Jesus. Oh, Lord. We lift up your name. What a wonderful name. What a wonderful name. What a wonderful name. The name of Jesus. What a wonderful name. What a wonderful name. What a wonderful name. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus. Jesus. Oh, What a beautiful name. Lord, oh, What a beautiful name. Lord, oh, Lord. What a beautiful name. तेरे नाम में क्षमा है प्रभु, तेरे नाम में शिफा है, तेरे नाम में कृपा है, तेरे नाम में चंगाई है। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना। फिर से एक बार कहे उसे, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। Lift up his name. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, Yeshu Nam, Yeshu Nam, Yeshu Nam, Yeshu Nam, Yeshu Nam, Ki Jai. We lift up your name. Yeshu Nam, Yeshu Nam, Yeshu Nam, Yeshu Nam, Yeshu Nam, Yeshu Nam, Ki Jai. Yeshu Nam, Yeshu Nam, Yeshu Nam, Yeshu Nam, Yeshu Nam, Yeshu Nam, Yeshu Nam,
Thank you, Jesus. Today there is power in your name. There is healing in your name. There is so much love in your name. There is redemption in your name. There is salvation in your name. कोई तुझे रोक ना पाया प्रभु. Forever we bow down before you. The Lamb that was slain. The Lamb that was slain. Now risen and exalted one. Seated on the throne. और वो नाम हमें दिया गया. Thank you, Jesus. Every eye lifted up to him, every hand lifted up to him. I believe the Lord wants to set people free today. We declare freedom today in worship. Hallelujah. उसका प्रेम आज आपको स्वतंत्र कर देगा. हालेलुया. हमारा परमेश्वर जो पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो हमसे बहुत प्यार करता है. ये समय है कि हम अपने भेंट देकर उसकी महिमा करें. परमेश्वर का वचन नीति वचन 18 और उसका 16वां अध्याय कुछ इस तरह से बताता है. भेंट मनुष्य के लिए मार्ग को खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है. जब आप अपनी भेंटों को खुशी के साथ आनंद के साथ परमेश्वर के समीप लेके आ रहे हैं
वो भेंट आपके उन बंद दरवाजों को खोल देगी। अभी आपकी स्क्रीन पर अपर रूम चर्च की बैंक डिटेल्स आ रही है, आप उसके द्वारा चर्च में बो सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। Pastor Joshua and Pastor May and entire team of Upper Room Church, praise the Lord. Today I want to, as I was thinking, and you all know that we started Jesus Kitchen project when the lockdown started. And during these lockdown periods, it has been 7 to 8 months. And we, as a couple, we have noticed that there are lots and up and down. When people give, they give out of emotion. Because when we started the project, there were many people who wanted to come, help, volunteer, give towards Jesus Kitchen. But then, as the lockdown was slowly the lockdown was over, the things started opening up, jobs started going, and people started going for their business. We noticed that people are emotional and they are inconsistent in what they do. And our God, whom we serve, whom we worship, He loves people who are consistent in giving, consistent in worshiping, consistent in obeying. So consistency is the key of a believer. And we want to say thank you that you have been consistent in giving towards Jesus Kitchen. And because of your consistency, we are able to continue the project. And as you have seen the photos, we have changed the menu of the food. Earlier we were giving dal and rice. Now we have turned it to khichdi, that is porridge. So we are including vegetables like potato and spinach and tomatoes and onions. So there are a lot of veggies, we are adding it, and we are giving nutritious food. And we are giving it to two areas. One is Rahul Colony and the other is ESI Hospital, that is a BK Hospital. And people are coming still now. There are long queues where people come and they want to take away the food. Now we are packing only 150 food packets, but the rest 100 to 150 we are giving it in their own plates. So people are bringing their own plates, their utensils to take the food, because we want to reduce the disposable expense also, and plus the environmental, we want to take care of the environmental. So we have reduced the disposable expense, and plus we are taking care of the environment. So we have asked our people who live in Rahul Colony to bring in their utensils. So little kids, they bring their small glasses to take the food, the small plates they bring to take the food, and our heart melts when we see that people are bringing, the children, the small children who are below 2 years, they are bringing small bowls to take the food. And once they take the food, they come back again to take the food. One day when I went, I asked the children, how do you like the food? And they said, Auntie, the food is delicious. That's what we want to hear. The food has to be delicious, and the love that we pour in, it makes the food more delicious. And thank you Upper Room Church for standing with us. And today I have my kitchen team who wants to say something, and they want to say what they are doing and why they are doing and what is the motive behind what they are doing. So thank you once again, Upper Room team. गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। मैं जीसस किचन टीम की तरफ से आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं कि हमारी टीम 10 बजे खाना बनाना स्टार्ट कर चुकी है। आजकल हमारी खिचड़ी बन रही है जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड है, और इसमें कई तरह की सब्जियाँ डालते हैं, आलू, प्याज, टमाटर। तो कोई आलू काट रहा है, कोई प्याज काट रहा है, कोई गोभी काट रहा है। और ये 12 बजे तक जब खाना प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद पैकिंग करते हैं, और पैकिंग होने के बाद हमारी डिस्ट्रीब्यूशन टीम आके उस खाने को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे ही जीसस किचन टीम की गाड़ी उन एरियाज़ में जाती है जहाँ खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है, उन बच्चों की एक्साइटमेंट को देखकर हमें एक्चुअल में खाने की वैल्यू पता चलती है, जो कि आज तक शायद हम घर बैठे में नहीं पता चल पाई थी। तो अब हमें लगता है कि सच में एक 10 रुपये अगर हम बचा सकते हैं, किसी के लिए दे सकते हैं, तो एक गरीब के पेट को शांति मिल सकती है उससे। तो मैं जीसस किचन सपोर्टर्स का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने आज तक जीसस किचन को सपोर्ट किया, और मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है कि आगे परमेश्वर और नए सपोर्टर्स खड़े करें, ताकि वो 500 लोगों तक के खाने के लिए हम परमेश्वर हमें सामर्थ्य दे और हम खाना प्रिपेयर कर सकें। धन्यवाद।
यीशु नाम भजो रे, यीशु नाम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। यीशु नाम भजो रे, यीशु नाम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं।
मैं धन्यवाद देता ये समय के लिए जो आप प्रभु ने हम सबको दिया कि हम एक साथ प्रभु के वचन से चीज़ों को सीख सके। यदि आप पहली बार इस संदेश को सुन रहे हैं, हमारे चैनल पे आप पहली बार रहे, तो मैं चाहता आप आखिरी तक बने रहे और प्रभु के इस वचन में से आप सीखते रहे। आज का शास्त्र भाग जो मैंने चुना वो मिलता है हमको मत्ती रची सुसमाचार इसके 8वें अध्याय में पहले, दूसरे, तीसरे वचन को हम पढ़ेंगे और उसमें से कुछ बातें जो प्रभु ने चित्र की रीति पर मुझे दिखाया मैं आपके साथ करना चाहता हूं। हम पढ़ते हैं मत्ती रची सुसमाचार इसका 8वां अध्याय पहला, दूसरा, तीसरा वचन। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। जब ये स्टोरी मैं पढ़ रहा था, जब मैं वचन को इसको पढ़ रहा था, मेरे आंखों के सामने एक चित्र दिखाई देने लगा। एक गांव का चित्र मुझे दिखाई दे रहा है और बिल्कुल पहाड़ के नज़दीक बसा हुआ, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ ये एक गांव है। मैं देख रहा जहाँ पर ये व्यक्ति रहा करता है। शायद इसकी पत्नी होगी, इसके बच्चे होंगे, परिवार होगा। और ऐसे समय में एक दिन ये पति आकर अपनी पत्नी से कहता है, मुझे उंगलियों में थोड़ा महसूस होना कम हो रहा है, मेरे पैरों की उंगलियों में सेंसेशन कम हो रहा है। उसकी पत्नी कहती, कोई बात नहीं, कुछ दिन तक हम देखते गए, फिर हम जाकर इसे वैद्यों के पास में जचाएंगे, देखेंगे क्या है। मगर जब कुछ दिन बीतने लगे तो मैं देख रहा था, कुछ दिन जब बीतने लगे तो ये व्यक्ति अब उंगलियों में कुछ भी महसूस नहीं करता है, बिल्कुल भी इसको फीलिंग्स होना बंद हो गया है। दिल घबराने लगा, अपनी पत्नी से कहता है, और मैं देख रहा दोनों पति पत्नी एक साथ उन दिनों में याजकों के पास में जाकर, ऐसा किसी के शरीर में यदि कुछ अनुभव उन्हें होता है तो उन्हें याजकों के पास जाना पड़ता था और याजक उनके शरीर को जांच पड़ताल करते थे। तब मैं देखा कि वे याजक के पास में गए और पत्नी को जो है बाहरी आंगन कक्ष में बैठा दिया गया और पति को याजक अंदर लेकर जाता है और अंदर ले जाने के बाद उसके शरीर का वो पूरा जांच पड़ताल करता, उसके शरीर को जांचता है और जांचने के बाद दिल दहलाने वाली एक खबर उसको देता है और वो खबर है, तुझे कोढ़ हो गया है। एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज जड़ी बूटी, एलोपैथी, किसी चीज में नहीं था। कोढ़ की बीमारी उसको हो गई। और जैसे उसने कहा कोढ़ की बीमारी हो गई तो शास्त्र में लिखा हुआ था, जो याजक उसको बताने लगा कि शास्त्र के नियम के अनुसार अब वस्त्र फाड़ कर तुझे तेरे घर में नहीं मगर नगर के शहरपना के दीवार के बाहर, फाटक के बाहर तुझे रहना है, जहां और कोढ़ी व्यक्ति रहा करते हैं। अब तू किसी भी त्योहार, प्रोग्राम, किसी भी चीजों में अपने घर नहीं आ सकता, समाज में लोगों के बीच में खुलकर जी नहीं सकता। यदि कोई अनजाने में तेरे मार्ग में कोई व्यक्ति तेरी ओर चला आ रहा है तो तुझे चिल्ला कर कहना है, अशुद्ध अशुद्ध व्यक्ति, ताकि लोग अपना डायरेक्शन बदल के चले जाए। कोई तेरे करीब, तेरे साथ नहीं रह सकता है और अब यहां से तू घर नहीं, तुझे नगर के बाहर जाकर रहना है। ये एक खबर पति ने जो सुना, दिल घबरा गया। उस कमरे से वो बाहर आते हुए मैंने उसको देखा, मैं जो चित्र देख रहा था मैंने देखा वो उस कमरे से, याजक के उस कमरे से बाहर आता है और जब पत्नी उसको देखती है तो मुरझाया हुआ चेहरा, घबराया हुआ चेहरा, सवाल मन में लाखों चल रहे हैं और कोई जवाब नहीं है। ऐसे हाल में जब वो बाहर आया, पत्नी देखकर समझ गई कुछ तो गंभीर बात है। दौड़ के अपने पति के पास आती है तो पति कहता, मेरे नजदीक मत आना, मेरे करीब मत आना, मुझे ऐसी बीमारी हो गई है जिसका कोई हल नहीं है, मुझे कोढ़ की बीमारी हो गई है, यदि तू मुझको छुएगी तो अशुद्ध हो जाएगी, मेरे करीब मत आना। परिवार के सामने एक बड़ा सवाल आ गया, पत्नी के सामने एक बड़ा सवाल आ गया, ये क्या चीज मेरे परिवार में हो गया, ये क्या घटना मेरे परिवार में हो गई है। परमेश्वर को पुकारते, हाय प्रभु ये क्या हो गया है। सवाल का जवाब नहीं है।
दोनों पति पत्नी उस स्थान से, याजक के उस स्थान से बाहर निकलते हैं। आए तो थे दोनों एक साथ में, मगर अब दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं। पत्नी जा रही है घर के तरफ और पति सर झुकाता हुआ, रोता हुआ, मुरझाया हुआ नगर के शहरपना के फाटक के बाहर चला जा रहा है। दोनों के रास्ते अलग बदलते चले जा रहे हैं। जब इस भाग की ओर मैं देख रहा था, पवित्र आत्मा मनुष्य के जीवन के कुछ भागों को मुझे दिखाने लगा। इस व्यक्ति के जीवन में सबसे पहला नंबर 1 भाग इसके जीवन में हुआ, एक ऐसी बीमारी ने इसके ऊपर कब्जा ले लिया जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। आज संसार में कई ऐसे लोग हैं जो ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसका कोई इलाज नहीं है। जब उनके कानों पर खबर पड़ती है कि उन्हें ये फलानी बीमारी हो गई, तो दूसरे ही पल उनका मन उनसे कहता अब तेरे पास ज्यादा समय बाकी नहीं है, देख वो फलाना बचा नहीं, देख वो फलाना जीवित नहीं रहा, अब तेरे पास भी ज्यादा समय बाकी नहीं है। ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिसके बारे में सुनते हुए इंसान घबरा जाता है और उसे लगता शायद औरों की तरह मैं भी मर जाऊंगा। कठिन सवाल ये व्यक्ति के मन में है। रास्ते से चला जा रहा और मन में सोचता हुआ चला जा रहा, क्या कभी इसके बाद मैं अपने परिवार के साथ जीवन निर्वाह करने पाऊंगा? क्या कभी इसके बाद मैं अपने दोस्तों और मित्रों के साथ एक साथ बैठकर हंस खेलने पाऊंगा? मेरे इस जीवन का क्या अंजाम होगा? इन सारे सवालों का जवाब उसके पास नहीं है। अपनी जवानी के दिनों में मैंने ये क्या बीमारी को पा लिया? क्यों मेरे लाइफ में ये चीजें आ गई? देखो, कई बार ऐसे सवाल जीवन की पेचीदी परिस्थिति में हमारे मन में उठते हैं। ऐसी बीमारी में पड़ा हुआ ये व्यक्ति चला जा रहा है। आज यदि आप ऐसी बीमारियों में जकड़े हुए हैं जिसका कोई इलाज नहीं, चाहे जन्म का अंधापन हो, चाहे लंगड़ापन हो, चाहे ऐसी बीमारियां किसी ना किसी बुरी आदतें, लतों के कारण शरीर में आ गई हो, चाहे आपकी किडनी खराब हो गई या आपके फेफड़े खराब हो गए, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक कोई भी बीमारी ने आप पे कब्जा ले लिया, आप दवाइयां करते हुए थक गए, आप वैद्यों के पास जाकर थक गए, मगर कोई इलाज देखने में दिखाई नहीं दे रहा। आज मैं आपके लिए एक समाचार लेके आया। या तो आप विश्वास करके इस वचन को पकड़ लेना, या तो एक कहानी सोच के आप इसे छोड़ देना, आपके हाथ में है। मगर मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, जब परमेश्वर ये वचन आपकी बिगड़ी हुई परिस्थिति में आपके कानों पर भेज रहा है, तो इसलिए नहीं भेज रहा कि आप उस बीमारी में मर जाए, इसलिए नहीं भेज रहा कि आप उस तकलीफ में खत्म हो जाए, मगर प्रभु ये वचन आपकी उस परिस्थिति में आपके पास इसलिए भेज रहा है कि उस परिस्थिति से परमेश्वर आपको छुड़ा कर बाहर निकालने पाए। ये आदमी जानता नहीं है, हजारों सवालों के साथ चला जा रहा। इधर हस्बैंड अपने मन के सवालों के साथ नगर के बाहर चला जा रहा, इधर पत्नी दूसरे हजारों सवालों के साथ अपने घर जा रही है। क्या होगा अब मेरे घर का? क्या होगा? पति था जो मेरा आधार था, पति था जब भी मुझे कुछ जरूरत लगती तो मन में ये हमेशा उत्तर मेरे रहा करता था, मेरा हस्बैंड है ना, सब संभाल लेगा। जब मन में क्वेश्चन उठता था घर की जरूरतें कहां से पूरी होगी, तो मालूम था मेरा पति है, संभाल लेगा। बच्चों के भविष्य का क्या होगा, तो मन में उत्तर था पति है जो संभाल लेगा। हर बातों के प्रति मैंने अपने पति पर भरोसा करना सीखा, निर्भरता रखा। मगर आज एक ऐसा समय आ गया जब पति की दिशा अलग हो गई है और पत्नी की दिशा अलग हो गई है। इस भयंकर सवालों के साथ पत्नी अपने घर को चली जा रही है। नंबर 1 चीज, इस आदमी को ऐसी बीमारी ने पकड़ लिया जिसका कोई इलाज नहीं था। एक दिन मेरे भाई विल्सन को भी ऐसे ही बीमारी ने पकड़ लिया था, ब्लड कैंसर नाम की बीमारी ने पकड़ लिया था। बहुत लंबा स्टोरी नहीं ले जाऊंगा, मगर डॉक्टर ने यह कह दिया था विल्सन 3 महीना से ज्यादा नहीं जिएगा। मगर आपको बताऊं, आज विल्सन 30 साल के ऊपर हो गया, जिंदा है, शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए और परमेश्वर ने उसे सारी बीमारी से मुक्त कर दिया। मालूम क्यों? क्योंकि जब डॉक्टर कह रहे थे कि ये नहीं बचेगा,
तब विल्सन प्रभु यीशु मसीह के चरणों की तरफ लाया गया। सारे परिवार ने यीशु के चरण पर गिरकर विल्सन के लिए गिड़गिड़ाया और उसके चरणों पर हमने अपने जीवन का इलाज पाया। विल्सन ने अपने छुटकारे को पाया। आज इस वचन के द्वारा मैं आपसे कहना चाहता, यीशु के चरण पर आपके लिए इलाज है। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आपके लिए इलाज है। कौन सी परिस्थिति में से होकर आप गुजर रहे हैं? यदि आज इस वचन को सुनते समय आप ये सोच रहे हैं मेरी परिस्थिति का जवाब किसी के पास नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता, हाँ, दुनिया में किसी के पास नहीं होगा, मगर यीशु के चरण पर आपके लिए जवाब है। यीशु मसीह के पास आपके लिए इलाज है। वचन को सुनते रहो, विश्वास करते रहो और आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके देह में चंगाई को रिलीज करने पाए। सो नंबर 1 चीज, इस आदमी ने अपनी सेहत को खो दिया। नंबर 2, उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है। उस व्यक्ति का देखो, हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय पहले वचन से हम पढ़ेंगे। आप देखो वचन क्या कहता है। जब वह उस पहाड़ से उतरा, जब यीशु पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे होली। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर, एक कोढ़ी ने पास आकर, उसका नाम नहीं लिखा है, कोढ़ी लिखा है। इसका मतलब ये बीमारी ऐसे उसके जीवन पर आ गई कि उसने उसकी आइडेंटिटी को चेंज कर दिया, उसकी पहचान को बदल के रख दिया। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें उसके लाइफ की आइडेंटिटी चेंज हो गई है। प्लीज ध्यान से सुनो, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे समझने में। आज बहुत तेरे लोग हैं जिनके जीवन में ऐसी ऐसी समस्या आ गई जिसने उनकी आइडेंटिटी को चेंज कर दिया है। माँ बाप ने तो बड़ी इच्छा से बच्चों का नाम रखा था, ये सोच के कि समाज उन्हें इस नाम से जानेगा, मगर आज कितने हैं जिन्हें लोग गुंडा करके जानते हैं, उनके नाम से उन्हें नहीं जानते। आज कितने लोग हैं जिन्हें लोग शराबी करके जानते हैं, उनके नाम से नहीं जानते। जब आप उनका नाम लेके बोलो तो लोग बोलते कौन, मगर आप बोलो वो नहीं क्या रास्ते के किनारे पड़ा रहता है, शराब पीकर नशे में धूत रहता है, तो लोग तुरंत पहचान जाते हैं किसकी बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो शराब आज उनकी पहचान बन गया। आज कितनी जवान लड़कियां हैं जो वेश्यागमन की आदत में चली गई और उनके जीवन की पहचान वेश्या बन गया है, प्रोस्टिट्यूट बन गया है। लोग उन्हें उनके नाम से नहीं मगर लोग उन्हें पाप के नाम से जानते हैं। इसलिए जिस दिन फरीसी के घर में यीशु मसीह खाना खाने के लिए गया था, बाइबल का वचन कहता उस नगर में एक पापिनी स्त्री रहती थी। बाइबल का वचन कहता है यूहन्ना 4 अध्याय में सामरी स्त्री, समरिया में रहने वाली पापिनी स्त्री, इनके जीवन के पाप इनकी पहचान बन गया था। आपको पता, दुष्ट हमारी पहचान को बदल देना चाहता है, हमारी पहचान को बिगाड़ देना चाहता है, हमारे लाइफ में ऐसी बातों को लाना चाहता है जिससे हमारी आइडेंटिटी चेंज हो जाए। जब हवा पर वार किया था ना, उत्पत्ति 3 अध्याय में, जब सर्प उससे बात कर रहा था, दुष्ट उससे बात कर रहा था, उसकी आइडेंटिटी पे वार कर रहा था। मालूम क्या बोला, ये फल खाएगी ना तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। जबकि आदम को बनाने के समय परमेश्वर ने कहा था कि तुम मेरे स्वरूप और समानता में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। ऑलरेडी मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में था, मगर दुष्ट उनकी आइडेंटिटी में खिलवाड़ कर रहा है, उनकी पहचान में वार कर रहा है। सुनो मेरी बात ध्यान से, पर दुष्ट आपके पहचान पर अटैक करता है, आपकी पहचान पर वार करता है। और आज कितने हैं जो अपनी आइडेंटिटी को खो बैठे हैं। सुनो, लोग आपके मुंह पर आदर से आपका नाम लेते होंगे, मगर आपके पीठ पीछे लोगों ने आपका क्या नाम रखा है। आज बहुत से गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जिनके पीठ के पीछे लोग उनका नाम लेकर बोलते हैं वो घूस लेने वाले लोग हैं। इसलिए तो बाइबल में आप देखोगे तो चुंगी लेने वाले लिखा है, उन लोगों के नाम नहीं लिखे गए, क्योंकि उनकी जीवन की बुरी आदतें उनकी पहचान बन गई है। ऐसे कितने लोग हैं जिनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई, जिनके जीवन में कुछ ऐसे पाप बस गए, जिनके लाइफ के पाप ऐसे खुले हो गए जिसके कारण उनकी आइडेंटिटी ही उनका पाप, उनकी आइडेंटिटी ही उनकी बीमारी बन गई। वचन कहता 38 साल से बीमार आदमी, देखिए
उसका नाम नहीं लिखा है, मगर उसकी बीमारी उसकी आइडेंटिटी बन गई है। ऐसे कितने लोग हैं। मगर आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे जीवन की बुराइयां, चाहे गंदगियों ने आपकी पहचान को बदल दिया होगा, कोई दुनिया में आज आपको अच्छा करके नहीं देखता होगा, आपके लिए यीशु के चरण पर इलाज है। आज आपके लिए यीशु के कदमों पर इलाज है। मैं आपसे कहना चाहता, वो आपकी पहचान को बदल के रख देगा। मेरे पास समय नहीं आपको उदाहरण बताने के लिए कि कितने लोगों के जीवन की पहचान प्रभु ने बदल दिया। मगर बाइबल में हम देखते हैं एक खूनी, एक एंग्री मैन शाऊल कैसे पौलुस में बदल गया और परमेश्वर का माइटी सर्वेंट बन गया। एक एंगर में डील करने वाला मोसेस जिसने किसी का मर्डर कर दिया, कैसे पृथ्वी का सबसे नम्र व्यक्ति बन गया जब वो परमेश्वर से मुलाकात हो गई। आज एक मुलाकात परमेश्वर के साथ की आपकी पहचान को बदल के रख देगा। सुनो, अपने आप को एडजस्ट मत कर लो उसके साथ में, उन बुरी लतों के साथ, बुरी आदतों के साथ, बुरे जीवन के साथ अपने आप को वैसा ही बनाकर मत रखो, मगर उसके मुलाकात की घड़ी को समझ जाओ। एक मुलाकात का समय, एक मुलाकात की घड़ी आपके पहचान को बदल के रख देगी। सारे यरियो में रहाब को वैश्या करके जाना जाता था। सारे लोग उसे वैश्या करके जानते थे और इतनी फेमस प्रोस्टिट्यूट थी कि इवन राजा उसे जानता था कि वो फेमस है, वो प्रोस्टिट्यूट है। She was famous in her dirty works. अपने गंदे कामों में वो फेमस थी। मगर एक मुलाकात परमेश्वर के साथ की, रहाब ने जान लिया ये अपॉर्चुनिटी को मैं लूज नहीं कर सकती। एक मुलाकात परमेश्वर के साथ की, रहाब की आइडेंटिटी को चेंज करके रख दिया। आज मैं आपसे कहना चाहता, आपके घर के लोग आपको गंदा देखते होंगे, आपके परिवार के लोग आपको गंदा देखते होंगे, आपने गंदा जीवन जिया होगा, आपके पाप पकड़ में आ गए होंगे, मगर सुनो मेरे भाई मेरी बहन, आपको उसमें जीने की जरूरत नहीं है। वो प्रभु जो कहता तेरे पाप लाई के समान लाल क्यों ना गए, मैं उसे बर्फ के मानींद सफेद कर दूंगा। एक मुलाकात आज वो आपसे लेना चाहता है। एक मुलाकात आज वो आपकी उस बिगड़ी हुई परिस्थिति में लेना चाहता। समाज आपको इज्जत नहीं देने पाएगा, कोई आपको आदर नहीं देने पाएगा, मगर जब परमेश्वर आपके आदर को बढ़ाएगा तब लोग कहेंगे ये कैसा था और ये आज क्या हो गया है, ये कैसी थी और आज इसकी जिंदगी क्या हो गई है। जिस बाइबल में रहाब वेश्या का लाइफ बदल गया और दाऊद राजा की परदादी बन गई, उस रहाब के लाइफ को बदलने वाला परमेश्वर आज आपके लिए उपलब्ध है। वो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। नंबर 1, इस आदमी ने अपनी सेहत को खो दिया। नंबर 2, इस आदमी ने अपनी पहचान को खो दिया। नंबर 3, इस आदमी ने अपने फैमिली को खो दिया। उसकी वाइफ अलग रास्ते पे जा रही है, वो अलग रास्ते पर जा रहा है। आज न जाने कितने पति पत्नी है जो दोनों अलग रास्ते पर जिंदगी जी रहे हैं। कहीं पत्नियां छोड़ के चली गई है तो कहीं पति छोड़ के चले गए हैं। और इन दोनों पति पत्नी को पूछे, इस व्यक्ति को जिसे कोढ़ हो गया है और ये महिला जो घर जा रही, दोनों से पूछे क्यों तुम दोनों के रास्ते अलग है, तो पत्नी कहेगी हम दोनों के बीच में कुछ आ गया है। पति कहेगा हम दोनों के बीच में कुछ आ गया है जिसने हम दोनों के रास्तों को अलग कर दिया। इस कहानी में पति पत्नी के बीच में बीमारी आ गई है, मगर आपकी कहानी में कौन आपकी और आपकी पत्नी के बीच में है? क्या घमंड, क्या क्रोध, क्या व्यभिचार, क्या कोई पराया पुरुष, क्या कोई पराई स्त्री, क्या धन, क्या पैसे का लोभ, क्या है जो पति पत्नी के आज बीच में आके खड़ा हो गया, जिसने पति पत्नी के रास्तों को अलग कर दिया। और अब पत्नी कहती है अब आगे की जिंदगी मुझे बगैर पति के जीना पड़ेगा, और पति रास्ते में चलते हुए कहता शायद अब आगे की जिंदगी मुझे पत्नी या बच्चे के बगैर जीना पड़ेगा। आज कितने तलाक परिवार ऐसे हैं। क्या आपको पता नहीं तलाक परमेश्वर का ओरिजिनल प्लान नहीं है?
परमेश्वर ने डिवोर्स प्लान नहीं किया, मगर परमेश्वर ने कहा जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको कोई अलग ना करे। इट मीन्स देयर इज अ वे आउट। इसका मतलब कितनी भी मैरिटल लाइफ में स्थितियां बिगड़ जाए, वहां से वापस जुड़ने का रास्ता है, मगर वो रास्ता कहाँ है? यीशु के चरणों पर रास्ता है। मगर जब पति अपने घमंड में टिका रहे, पत्नी अपने घमंड में टिकी रहे, दोनों भी झुकना न चाहे, तब इन बातों को सफलता मिलती है, डिवीजन की बातों को। मगर यदि दोनों परमेश्वर के चरण पर आ जाए, तो मैं आपसे कहता, प्रभु टूटे हुए बाड़े को सुधारना जानता है, वो टूटे हुए परिवारों को सुधारना जानता है। देयर कैन बी सो मेनी रीजंस, कई रीजंस होंगे, मगर क्यों होशे जैसे नबी को परमेश्वर कहता, तेरी पत्नी वेश्यागमन के लिए चली गई, उसके लिए कीमत दे और उसे वापस लेकर आ। क्यों परमेश्वर होशे से ये नहीं कहता कि उसे तलाक दे दे, छोड़ दे, क्योंकि वो वेश्यागमन के लिए गई है? ना, परमेश्वर कहता क्षमा करो और फिर से प्रेम करके परिवार वापस एक साथ में जुड़ जाओ। मगर हम अपने घमंड में क्षमा नहीं करना चाहते हैं, हम अपने घमंड में उसी बातों में टिके रहना चाहते हैं। और मालूम वो घमंड कहां टूटेगा? यीशु के चरण पर टूटेगा। वो आपसी प्रेम वापस रिस्टोर कहां होगा? यीशु के चरण पर रिस्टोर होगा, जगह हम प्रभु से कहेंगे, लॉर्ड इन बातों को हम पति पत्नी के बीच में से आप दूर कर दो और आपकी उपस्थिति हम दोनों के बीच में आप लेके आ जाओ। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता, हो सकता आप अपने पति से दूर हो सकता आप अपनी पत्नी से दूर हो, मगर आप जहां हो क्या वहीं यीशु के चरण पर आ सकते हो? ये कोढ़ी आदमी अपनी पत्नी के पास घर में जाकर अपनी पत्नी को लाकर यीशु के चरण पर नहीं गिरा, वो अकेला अपने हाल में यीशु के चरण पर गिरा। आज आप जिस हाल में है, क्या उसी हाल में यीशु के चरण पर घुटना टेक सकते हैं? यीशु के सामने घुटना टेक सकते हैं? क्या यीशु के सामने घुटना टेकने का मतलब, मैं आपको फिजिकली घुटना टेकने के बारे में नहीं कह रहा। यदि आपको फिजिकली घुटना टेकना है, आप टेक सकते हैं, मगर मैं आपसे कह रहा, क्या आप अपने दिल को उसके सामने उंडेल सकते हैं और उससे कह सकते हैं, लॉर्ड यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, यदि तू चाहे तो मेरी आइडेंटिटी मुझे लौटा के दे सकता है, यदि तू चाहे प्रभु तो मेरा टूटा हुआ परिवार मुझे लौटा के दे सकता है, यदि तू चाहे तो मेरे घर परिवार के झगड़े खत्म होकर तू प्रेम को उंडेल सकता है, तू सारी चीजों को सही कर सकता है लॉर्ड, तू सब कुछ कर सकता। आई बिलीव ऑन यू लॉर्ड। मैंने बुरी कल्पनाओं को आने दिया, मैंने दुष्ट विचारों को आने दिया, मैंने दुष्ट व्यवहारों को आने दिया, मगर आज इन सब चीजों को दूर करके मैं तुझे इनवाइट करता हूं जीसस। मैं आपको बताऊं, जब यीशु आएगा वो सारे टूटे हुए बाड़े को सुधार देगा, क्योंकि उसने कहा, मैं टूटे हुए सरखंडे को फेंकता नहीं हूं और मैं तिमतिमाती हुई बत्ती को बूझने नहीं देता। आपका परिवार बूझने नहीं पाएगा, आपका घराना बूझने नहीं पाएगा, मगर प्रभु सारी बातों को आपके लाइफ में संभाल लेगा। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। ये सुंदर चीजें हैं। मैंने आपको 3 बातें अब तक बताई। नंबर 1, इस व्यक्ति ने अपनी सेहत को खो दिया जिसका कोई इलाज नहीं था। इस व्यक्ति ने अपनी पहचान को खो दिया, कोई उसे लौटा के दे नहीं सकता था। इस व्यक्ति ने अपने परिवार को खो दिया। सोच के देखो, जब वो घर वापस गई होगी पत्नी, घर के पूछते होंगे, बच्चे पूछते होंगे, मम्मी पापा कहाँ है? माँ जवाब नहीं दे सकती, क्या बताऊं बेटा, ऐसी बात हो गई है कि अब पापा घर नहीं आ सकते। आज कितने तलाकशुदा माँ बाप तो अलग हो गए हैं, मगर बच्चे सवाल पूछते हैं कभी पापा को, पापा मम्मी कब आएगी? और कहीं माँ को बच्चे पूछते हैं, मम्मी पापा की याद आ रही है, पापा कब आएंगे? मगर पति पत्नी दोनों हठीले स्वभाव में झुकना नहीं चाहते हैं और बच्चे उसका दर्द उठा रहे हैं। यहाँ इस स्टोरी में तो वो बेचारे अपने आप से कुछ नहीं कर सकते थे, मगर शायद आपकी स्टोरी में कुछ हो सकता है। शायद आपके कारण कुछ और होंगे टूटने के, और प्रभु से जोड़ना चाहता है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, दिस इज द राइट टाइम, प्रभु के चरण पर गिरो। मालूम क्यों? क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, आपका मेरा परमेश्वर मनों को बदलने वाला परमेश्वर है।
यदि आपके पति की गलती है, आपका मन कहता है, तो प्रार्थना करो ना, उसका मन बदलेगा और वो आकर माफी मांगेगा आपके पास और फिर से घर रिस्टोर हो जाएगा। और यदि पवित्र आत्मा आपको आपकी गलती दिखाए तो माफी मांगो प्रभु से और पवित्र आत्मा से कहो, लॉर्ड मैं झुकने के लिए तैयार हूं। वो परमेश्वर जो मनों को बदलने वाला परमेश्वर है, वो आप दोनों के मनों को बदल देगा। और चौथी बात इसमें जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, शायद इस आदमी ने अपनी नौकरी को खो दिया होगा। ये कहीं जॉब करता होगा, घर का ब्रेड एंड बटर व्यक्ति ये होगा जो उनको ला कर देता है, जरूरतों को पूरी करता है, बच्चों का कहीं फीस भरना है, कुछ करना है, तो पापा कहता चिंता मत कर, मैं हूं, सब संभाल लूंगा। मेहनत करके अपने घर की जरूरतें पूरा करने वाला व्यक्ति, मगर अब ऐसी बीमारी हो गई जिस कारण वो समाज में नहीं आ सकता, और क्योंकि समाज में नहीं आ सकता, अब नौकरी के जगह पर जा नहीं सकता। पता नहीं धन कहां से आएगा। एक समय था अनाजों के बोरे भर भर कर घर में रखता था। एक समय था सारे रिश्तेदार परिवारों को घर में बुलाकर जेवनार और बड़े प्रोग्राम और त्योहार मनाया करता था। भाई बहन सब इकट्ठा होकर बड़ा भोजन जेवनार होता था। मगर आज जिंदगी में एक ऐसा समय आ गया है जब दिन में 3 वक्त की रोटी मिल जाए तो काफी है, सोचता है। नगर के बाहर फाटक के दरवाजे पर सोचता है, कल सुबह का नाश्ता कहां से आएगा, दोपहर का खाना कहां से मिलेगा। वहां बैठे बैठे मन में सोचता है कि मैं तो कमाई के लिए नहीं जाता, मेरी पत्नी की जरूरतें कहां से पूरी होगी, मेरे बच्चों की जरूरतें कहां से पूरी होगी, मेरा घर कहां से करेगा। उधर घर में बैठे हुए पत्नी सोचती है कि अब तक तो मेरा पति था जो सारी घर की जरूरतें पूरी करता था, मगर अब मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। जो काम पति का है अब वो मुझे करना पड़ेगा। अब तक जो पति करता था अब वो मुझे करना पड़ेगा। आपको मालूम, यदि ये पत्नी को पूछे तेरा पति है क्या, तो पत्नी कहेगी पति तो है मगर नहीं के बराबर है, क्योंकि जो उसे करना चाहिए वो सब मैं करती हूं, पति रहकर भी कोई मतलब का नहीं है। सुनो मेरी बात, आज कई पत्नियां ऐसे ही दुख में हैं क्योंकि पति 24 घंटा शराब के नशे में पड़े रहते हैं, नशे की बुरी आदतों में पड़े रहते हैं। और वो पत्नियां हैं जो बाहर जाकर काम करती है, मेहनत करती है, और पति उनकी मेहनत की कमाई का शराब पीकर खत्म कर लेते हैं, मारते हैं अपनी पत्नियों को। ऐसी पत्नियों को यदि सवाल पूछे तो वो कहती है पति तो है मगर नहीं के बराबर है। नहीं होता तो अच्छा होता, जो उसने करना चाहिए सब हमको उसके लिए करना पड़ता है। यही दशा है। सुबह ये पत्नी उठती होगी, रोटी बनाती है, सब्जी बनाती है, और सुबह सुबह जाती है और दूर कहीं पत्थर पर कुछ भोजन रख देती है, और उसका पति फाटक के बाहर दूर से देखता है मेरी पत्नी आकर टिफिन भोजन रख दी है, और ये दूर जाके खड़ी रह के देखती होगी, क्योंकि ये सब चित्र में देख रहा था। वो देखती है वहां से और पति आता है दूर से, एक रोटी का टुकड़ा तोड़ के खाता है और अपनी पत्नी को देखकर मन ही मन रोता है, दिल ही दिल रोता है। एक निवाला मैं अपनी पत्नी को खिला नहीं सकता, वो दूर से मुझे देखती है, रोता है अपने हालात पर मगर परिवार के पास आ नहीं सकता, बच्चों के हाल पूछता है मगर आ नहीं सकता। शायद पत्नी अपने छोटे बच्चे को लेकर आती होगी और दूर से दिखाती होगी वो देखो पापा, और यदि बच्चा दौड़ के पापा के पास जाने के लिए जाए तो माँ है जो रोक देती, बोलती नहीं बेटा तू पापा के पास जा नहीं सकता। आज कितने कोर्ट में ये फैसले सुनाए गए कि अब से बच्चा सिर्फ मां के पास रहेगा, पापा के पास जा नहीं सकता, बाप को समय मांगना पड़ता है। ऐसी बुरी और टूटी दशा में पड़े हुए परिवार के लिए परमेश्वर कहता बेटा मैं टूटे हुए बाड़े को सुधार सकता हूं। आप जहां गए वहीं प्रभु को पुकार के देखो। वो कहता अपनी समझ का सहारा मत ले, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, वही तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, वही तेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आज मैं आपसे कहना चाहता, लड़ना छोड़कर यीशु के चरण पर आओ, यीशु के चरण पर गिर जाओ। ये आदमी सोचता है कैसे होगा, कहां से होगा मुझे नहीं पता, मगर अब मैं मेरे घर में धन ला नहीं सकता। शायद आज आप में से बहुत तेरे लोग होंगे जो कहते होंगे पास्टर
एक समय था बहुत अच्छा धंधा चल रहा था, एक समय था बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था। मगर पास्टर, जब से ये कोरोना वायरस हुआ, चीजें हुआ, पूरा बिजनेस चौपट हो गया, सब खत्म हो गया, सब उजड़ गया, दुकानदारी खत्म हो गई, नौकरी छूट गई। पहले तो क्या क्या मजा लेते थे, मगर अब पास्टर लगता है दिन में 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो काफी है। कैसे न तैसे घर का गुजर बसर हो जाए, कहीं से कुछ जरूरतें पूरी हो जाए तो काफी है। यू नो व्हाट, कई सारे फाइनेंशियल क्वेश्चंस माइंड में आते हैं। मगर मैं आपको बताऊं, वो परमेश्वर जो कहता है, जिसके विषय में दाऊद कहता, मैं जवानी से बूढ़ा हो गया मगर धर्मी जन के संतान को मैंने भीख मांगता हुआ नहीं देखा। वो परमेश्वर जो याकूब से कहता, याकूब मैंने बालकपन से तुझे गोद में उठाया और तेरे बुढ़ापे तक तुझे ऐसा ही लेकर चलूंगा। वो परमेश्वर जो कहता, देख आकाश के पक्षियों को ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं, मगर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जब उन आकाश के पंछियों को खिलाता है तो वो तुम्हारी जरूरतों को क्यों ना पूरी करेगा। आज उस परमेश्वर के चरणों पर आ जाओ और प्रभु से कहो, लिस्ट बनाओ। मुझे जब फाइनेंशियल नीड पड़ता है, मैं कागज में लिखकर लिस्ट बनाता हूं, मेरी पत्नी के साथ बैठता हूं और हम लोग उस पे हाथ रख के प्रार्थना करके कहते, पापा ये हमारी जरूरत है, आप इसे पूरा करो। और परमेश्वर सुपर नेचुरल प्रोविजन करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं इसी समय यीशु के नाम से, इन जीसस नेम, जितने लोग सुन रहे, आपने यदि नौकरी खो दिया है, यीशु के नाम से इसी महीने में सुपर नेचुरली आपको जॉब मिलने पाए। इन जीसस नेम राइट नाउ, यीशु के नाम से जॉब अपॉर्चुनिटीज खुलने पाए। राइट नाउ जो लोग स्ट्रगल कर रहे, जो बेचैनी में है, जो परेशान है, जो सोच रहे कहीं नौकरी नहीं मिल रही, यीशु के नाम से इसी महीने में जॉब मिलने पाए। इसी महीने में पिताजी जितना सैलरी उन्हें चाहिए उनके परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए, यीशु के नाम से जॉब अपॉर्चुनिटीज खुलने पाए इन जीसस नेम। जो विश्वास से पकड़ रहे वो ले लेने पाए। आमेन आमेन। थैंक यू लॉर्ड। लिसन टू मी, जो बात मैं आपको बता रहा, नंबर 1 इस आदमी ने सेहत को खो दिया, नंबर 2 आइडेंटिटी को खो दिया, नंबर 3 फैमिली को खो दिया, नंबर 4 अपने इनकम के जरिए को खो दिया, धन कमाने के रास्ते को खो दिया। अब पैसा कमाने जा नहीं सकता है, अब धन का बहाव बंद हो गया है। ऐसे बुरे हाल में यह आदमी पड़ा है। और इतना ही नहीं, मगर अब यह इंसान अपने जीवन में अकेलेपन को महसूस कर रहा, लोनलीनेस, कोई नहीं है। उधर बैठे बैठे उसके मन में याद आता है, मैं देख रहा था, वो मन में सोचता है बैठे बैठे, मेरे घर परिवार में कभी भी किसी को जरूरत पड़ती थी तो मैं दौड़ के चला जाता था, सबसे पहले मदद के लिए मेरा हाथ खड़ा रहता था, जब भी किसी और को जरूरत पड़ी तो मेरा मदद का हाथ खड़ा रहता था। मगर आज जब मैं तकलीफ के घड़ी में हूं तो कोई मेरे साथ नहीं है, मेरे जीवन की लड़ाई में अकेला लड़ रहा हूं, कोड़ में कोई साथ देने नहीं आ सकता था। शायद आज अपने जीवन में ऐसी बातों में आप जी रहे हैं जहां आपको ऐसा लगता है, आई एम अलोन, कोई मुझे समझता नहीं है, कोई मुझे जानने नहीं पाता है, कोई मुझे अंडरस्टैंड नहीं करने पाता है, मेरी लड़ाई में अकेला लड़ रहा हूं, नोबडी अंडरस्टैंड्स मी। ना मेरे इर्द गिर्द बहुत लोग दिखाई देते हैं, बट स्टिल आई एम अलोन। आज कितने लोग हैं जो बड़ी बड़ी भीड़ में भी अकेले है, क्योंकि वे अपने जीवन की लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं। कोई नहीं है उन्हें राइट काउंसलिंग करने के लिए, कोई नहीं है जो सही सलाह दे सके, या कोई ऐसा नहीं है जो उसमें से उभरने के लिए उसकी मदद कर सके। आपको मालूम, जब दाऊद साम 40 में लिखता है तो कहता, सत्यानाश के गड्ढे में से और दलदल के कीच में से मैंने यहोवा को पुकारा। There was nobody। जब मैं दलदल के कीच में था, जब मैं सत्यानाश के गड्ढे में था और जब दलदल मुझे निगल रहा था तो कोई मनुष्य मुझे उसमें से बाहर निकालने के लिए नहीं था। मगर वो समय भजन का लिखने वाला चुपचाप नहीं रहा, उसने परमेश्वर को पुकारा, क्योंकि उसने जान लिया जहां दुनिया के हाथ पहुंच नहीं सकते वहां परमेश्वर पहुंच सकता है।
क्या बताना चाह रहा मैं आपको? बाइबल का वचन कहता उसने उसको सत्यानाश के गड्ढे में से उभारा। आज परमेश्वर आपको उभारेगा, उस अकेलीपन की जिंदगी से आपको उभारेगा। आपने बहुत प्यार किया किसी को, मगर वो आपको छोड़ के चला गया। आपने जिसके साथ जिंदगी बांधी, कई बहुएं हैं जो मन में ये सोचती है मैं अपने माँ बाप को छोड़ के आई, और जिस पति के साथ मैं यहां आई अब वो पति भी मेरा साथ नहीं देता, सास ससुर भी मेरा साथ नहीं देते। मैं अपने घर में तो हूं क्योंकि मेरे माँ बाप कहते हैं तेरा असली घर तेरे पति का घर है। मैं अपने घर में तो हूं, अपने पति अपने बच्चे के साथ तो हूं, मगर फिर भी मैं अकेली लड़ाई लड़ रही हूं। मेरा पति मुझे नहीं समझता है, मेरे बच्चे मुझे नहीं समझते गए। सुनो, मैं आज आपसे कहना चाहता, हो सकता आप ऐसे दौर से जिंदगी के जा रहे जहां आप अकेली लड़ाई लड़ रहे, मगर मैं आपको बताऊं आप अकेले नहीं हो, क्योंकि कोई है जिसने आपसे वादा किया है जगत के अंत तक सदैव मैं तेरे साथ रहूंगा। आपको मालूम, मैंने यीशु को पूछा, जीसस ऐसा वादा मर के जी उठने के बाद आपने क्यों किया कि मैं जगत के अंत तक सदैव तेरे साथ रहूंगा? क्यों ऐसा वादा किया? यीशु कहता इसलिए वादा किया क्योंकि अकेलापन क्या है मैं जानता हूं मोसेस। अकेलापन क्या है? ये यीशु जो भीड़ से घिरा रहता था, ये यीशु जिसके आगे पीछे भीड़ हमेशा रहती थी, एक दिन भीड़ ने उसको छोड़ दिया। 70 लोग जो यीशु के पास आए थे, एक दिन 70 लोग उसे छोड़ के चले गए। 12 चेले जो उसके पीछे पीछे रात दिन चलते थे, एक दिन क्रूस की मृत्यु से पहले 12 चेले उसे छोड़कर चले गए। मगर उतना ही नहीं, जब दुनिया के सारे लोग छोड़ के चले गए तो उसके अंदर एक आवाज थी, मेरा पापा मेरे साथ है। मगर क्रूस पर एक घड़ी आई जब यीशु ने पुकार के कहा, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मनुष्य ने भी छोड़ दिया, परमेश्वर ने भी छोड़ दिया। जिसके बारे में यशायाह का लिखने वाला कहता वो मनुष्य का त्यागा हुआ था, वो अकेला हो गया। और यीशु अकेला जब अपने युद्ध को लड़ रहा था, वो कहता वो अकेलेपन को मैं जानता हूं मोसेस, इसलिए मैं मर के जब जी उठा तो मैंने पहला निर्णय लिया, मैं मोसेस को कभी नहीं छोड़ूंगा। आपका नाम लेके वो कहता मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। कितनी भी परिस्थिति बिगड़ जाए, कितने भी हालात बिगड़ जाए, और तू मेरे साथ रहे ना रहे, मगर मैं तेरे साथ रहूंगा क्योंकि मैं अकेलेपन को जानता हूं। प्रभु कहता है यह शैतान का झूठ है कि आपके जीवन की उस लड़ाई में आप अकेले हैं। आप अकेले नहीं है, मेरा यीशु आपके साथ है, क्योंकि वो वादे का पक्का परमेश्वर है। वो झूठ नहीं बोलता, वो अपने वादे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। नंबर 1, इस व्यक्ति ने अपनी पहचान, बीमारी, अपनी सेहत को खो दिया, पहचान को खो दिया। नंबर 2, उसने परिवार को खो दिया। नंबर 3, उसने फाइनेंस, पैसा कमाने के रास्ते को खो दिया। नंबर 4, वो अकेलेपन में घिर गया, कोई मित्र नहीं है। मालूम, अकेलेपन खाता है इंसान को मन के हजारों सवालों से। जब वो कहता है कोई मित्र नहीं जो जीवन के अच्छे समय में मेरे साथ थे, मजे और पार्टी के समय में मेरे साथ थे, मगर जब हालात बिगड़ गई तो कोई मेरे साथ नहीं, सबने मुझे छोड़ दिया। उड़ाऊ पुत्र उन सुअरों के बीच में जाकर खाता और रहता है, और जान गया दोस्तों की संगति मजे तक थी, मगर अब मैं अकेला हो गया हूं, कोई मेरे साथ नहीं है। अकेला इस जीवन की लड़ाई में लड़ रहा हूं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई मेरी बहन, अकेली लड़ाई लड़ना बंद करो और प्रभु को इनवाइट करो। अपने जीवन की इस अकेले अलोन बैटल में यीशु मसीह को इनवाइट करो, क्योंकि जिसके युद्ध में यीशु प्रवेश कर जाता है वो युद्ध को वो पलटा देता है। और यीशु उस आदमी से कहता, बेटा अब मैं तुझे जय के उत्साह में लेकर चलूंगा, बेटा अब तू जयवंत से भी बढ़कर होगा, बेटा कितनी भी परिस्थितियां बिगड़ जाए मगर तू ही जीत कर बाहर निकलेगा। सुन, यदि तू आग से होकर जाएगा तो जलने नहीं दूंगा, नदियों से होकर जाएगा तो डूबने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि तेरी लड़ाई में तूने मुझे इनवाइट किया है।
पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। इस वचन के द्वारा मैं सिर्फ आपको इनकरेज करना चाह रहा। मैं नहीं जानता इन सारे समस्याओं में से आप कौन सी समस्या में से होकर जा रहे हैं, मगर मैं कहता इसमें से जिसमें से भी आप जा रहे हैं, यीशु मसीह योग्य है आपको छुड़ाने के लिए। वो योग्य है और वो आपकी ओर देख रहा है, आप उसे पुकारिए। मगर सुनो, मैं आपको थोड़ा इस वचन की गहराई में लेकर जाना चाहता और पवित्र आत्मा आपकी मदद करे सुनने में। मेरे साथ चलो, ध्यान से सुनो। ऐसे समय में जब ये आदमी इन सारी परिस्थितियों से घिरा हुआ था और कोई इलाज इसके जीवन के लिए नहीं था, इसने जान लिया मैं एक अदृश्य जेल में बंद हो गया हूं। मैं खुद की मर्जी से शहरपनाह के अंदर जा नहीं सकता। एक इनविजिबल जेल ने मुझे ढाक कर रखा है। आई कैन नॉट गो आउट। मैं बाहर के लोगों को फ्रीली जाता आता देखता हूं। इसी शहरपनाह के दरवाजे से पति पत्नी और बच्चों को जाता आता देखता हूं। वे खुशी से जाते हैं, आते हैं, वे कितने आनंद से जाते आते हैं, मगर मैं अपने पत्नी बच्चे के साथ जा नहीं सकता। एक इनविजिबल जेल में मेरा लाइफ सीमित है। मुझे यही रखना है, मैं यहां से बाहर नहीं जा सकता। शायद आप कर्जे के जेल में होंगे, शायद आप बरसों से उस बीमारी के बिस्तरे के जेल में होंगे, शायद आप बरसों से उसी मानसिकता की कल्पनाओं में बंधे हुए जेल में होंगे और आप बाहर नहीं निकलने पा रहे हैं। आप सोचते हैं कब मेरे हालात सुधरेंगे, कब मैं औरों की तरह एक आजाद जिंदगी जीने पाऊंगा। मैं आपसे कहना चाहता, आज का दिन आपके लिए मुलाकात का दिन है। This is the day of God's visitation. And I pray in Jesus' name. यीशु के नाम से मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, जैसे ये दिन इस व्यक्ति के लिए मुलाकात का और सब कुछ बदल जाने का दिन था, ऐसे ये दिन आपके लिए सब कुछ बदल जाने का दिन हो। ये दिन आपके लिए मुलाकात का दिन हो। ये दिन परमेश्वर के विजिटेशन का डे आपके लिए ठहराया जाने पाए। In Jesus' name I declare this is the day of visitation. जहां आपकी परिस्थितियां हारेगी और आप जीत के बाहर निकलोगे, जहां आपके हालात खत्म होंगे आप जीत के बाहर निकलोगे, जहां परिवार का दुख खत्म होगा और आनंद जीत के कारण रिस्टोर किया जाएगा। दिस इज द डे ऑफ विजिटेशन। कम ऑन द फीट ऑफ जीसस। यीशु के चरण पर पुकारिए। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। सुनो सुनो, ये आदमी अदृश्य जेल में है और खुद के बल से बाहर नहीं आ सकता। हालात इतने बिगड़ गए, हर दिन बीमारी में कंडीशन बिगड़ता चला जा रहा। हर दिन बीमारी के कारण हालात और कंडीशन पेचीदा होता चला जा रहा। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत हालात बिगड़ते चले जा रहे। उंगलियां गल रही है, पैर की उंगलियां गल रही है, शरीर में वीकनेस आ गया, थोड़ा दूर चलता है फिर बैठ जाता है, ज्यादा नहीं चल सकता क्योंकि वीक हो गया है। नाना प्रकार की बीमारियां अंदर में समाने लग रही है, क्योंकि कोढ़ की बीमारी नेचुरल इम्यून सिस्टम को खत्म करती है, प्रतिरोध शक्ति को खत्म करती है और दूसरी बीमारियों का समावेश होना शुरू होता है। इंसान कमजोर है और ऐसे समय में अकेला जब वो लड़ रहा है, बाहर नहीं निकल सकता, मन में कल्पना होती है, ये जिंदगी जीने का क्या मतलब है, किसके लिए मैं जी रहा हूं। रोज मेरी पत्नी इतना तकलीफ उठा कर आती है भोजन लेकर, रिश्तेदार में से कोई मेरे साथ नहीं है, अकेली लड़ाई लड़ रहा हूं, धूप में भी यही हूं, बारिश में भी यही हूं, कड़कती ठंड में भी यही हूं। क्या काम की ये जिंदगी है, हर पल हर दिन मृत्यु के कगार की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा हूं। कहां से बाहर निकलूंगा, कोई इलाज नहीं है, कोई सांत्वना के शब्द नहीं है। ऐसे समय उसके मन में सवाल है, मैं क्यों जी रहा हूं। और अब मन कहता है इसके बजाय तो मर जाऊं अच्छा है। पत्नी चली गई छोड़ के, किसके लिए जीऊं, इसके बजाय तो मर जाऊं अच्छा है। पति छोड़ के चला गया, किसके लिए जीऊं, इसके बजाय तो मर जाऊं अच्छा है। कोई मुझे नहीं समझता, मैं अकेला हूं, इसके बजाय मर जाऊं तो अच्छा है। ये बीमारी में मैं ठीक नहीं हो रहा, मगर रिपोर्ट और बिगड़ते चले जा रहे, इसके बजाय मैं मर जाऊं तो अच्छा है। मृत्यु के सवाल मन में आने लगते हैं।
मगर सुनो, आज मैं आपसे कहना चाहता, यदि इस मृत्यु के कल्पनाओं में से होकर आप गुजर रहे हैं, चाहे आत्महत्या या आप मृत्यु या मौत परमेश्वर से मांग रहे, इसके बजाय कि आप चंगे हो जाए, आज मैं आपसे यह कहना चाहता, जिस यीशु की मैं आपसे बात कर रहा ना, वो यीशु भरी जवानी में मर गया कि हम दीर्घायु को प्राप्त कर सके, हम लंबी उम्र को प्राप्त कर सके। वो ये नहीं चाहता कि आप भरी जवानी में मर जाए, वो ये नहीं चाहता कि आप उस बीमारी में मर जाए, जबकि उसने तड़प तड़प के अपनी देह में हमारी बीमारी का इलाज कर दिया गया। इतना दर्द उठाया कि मांस टुकड़ों में तोड़ा गया और उसमें हमारी बीमारी की कीमत उसने ले लिया है। वो यीशु नहीं चाहता कि आप बीमारी में मरे, इसलिए मृत्यु की आशा मत करो, जीवन दायक की आशा करो, यीशु के मुलाकात की आशा करो और कहो, जीसस आई एम वेटिंग फॉर योर विजिटेशन ओ लॉर्ड। मेरी इस परिस्थिति में मेरे पास जवाब नहीं है, मगर तेरे पास है, मैं तेरी मुलाकात पाना चाहता हूं लॉर्ड। सुनो, जब ये आदमी ऐसे हाल में शायद बोल रहा होगा, प्रभु मैं किसके लिए जीऊं, मुझे मार डाल, उतने में मुझे दिखाई देता है पहाड़ के नीचे, शहर के फाटकों के बाहर, उस पहाड़ की तराइयों में इस आदमी को आवाज आने लगी, और आवाज थी, धन्य है वे जो मन के दीन है। और जब वो सुनने लगा, ये आवाज जब उसके कानों पर आ रही थी, एक के बाद एक, धन्य है वे, धन्य है वे, धन्य है वे। ये आदमी सोच रहा, मेरा जीवन तो श्रापों में पड़ा हुआ है, मगर ये कौन है जो धन्य जीवन के विषय में बातें कर रहा है। मत्ती 5वां अध्याय, मत्ती 6वां अध्याय, मत्ती 7वां अध्याय, यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर प्रचार कर रहा था, और पहाड़ के नीचे तराई में यह आदमी यीशु मसीह के प्रचार को सुन रहा था। सुनो ध्यान से, मैं आपको क्या बताना चाह रहा। शायद बड़ी भीड़ यीशु मसीह और उसके बीच में थी, भीड़ के कारण शायद वो यीशु को देख नहीं पा रहा होगा। ध्यान से सुनो, भीड़ के कारण शायद यीशु को देख नहीं पा रहा होगा। यीशु मसीह पहाड़ पे से बोल रहा है, यीशु को देख नहीं पा रहा, मगर यीशु की आवाज को सुनने पा रहा। और आपको मालूम, जब यीशु बोलता था ना, तो लोगों के दिल दहलते थे। जब यीशु बोलता था तो उसके शब्द गूदे गूदे को चीरते हुए अंदर जाते थे। जब यीशु बोलता था तो मरा हुआ जिंदा होकर बाहर आता था। जब यीशु बोलता था तो मरा हुआ विश्वास जागृत हो जाता था। आज वही यीशु आपसे बोल रहा है। पास्टर मोसेस की तो आवाज है, मगर इसमें यीशु आपसे बोल रहा है, और आई डिक्लेयर आपका मरा हुआ विश्वास जागृत होने पाए। आई डिक्लेयर आपकी मरी हुई परिस्थिति में जीवन प्रवेश करने पाए। यीशु पहाड़ के ऊपर से बोल रहा था और नीचे तराई में आवाज जा रही थी। क्या बताना चाहता मैं आपको, सुनो बहुत ध्यान से। पहले यीशु का वचन आता है, और जो व्यक्ति विश्वास में वचन को पकड़ लेता है, यीशु खुद आकर उस वचन को उसके जीवन में पूरा करता है। लिसन टू मी, ये स्टोरी मुझे बड़ी ब्यूटीफुल लगती है। इवन दो ये शुरू होता है कि और वो पहाड़ से नीचे आया, मगर आपको मालूम, यीशु पहाड़ से नीचे आने से पहले यीशु का वचन उस कोढ़ी व्यक्ति के कानों तक आया। यीशु का वचन पहले आया, और उसके बाद यीशु खुद कोढ़ी व्यक्ति के पास में आया। क्या बताना चाह रहा मैं आपको, पहले वचन आता है। आज आपकी इस परिस्थिति में वचन आ रहा है, पहले वचन आता है, और जो वचन को पकड़ लेता है, यीशु आकर उसके लाइफ में वचन को पूरा करता है। इसलिए बाइबल का वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, मगर मेरे मुख के शब्द कभी नहीं टलेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है। हालेलुया। वचन को कैसे पूरा करता? पहले वो वचन को भेजता है, और जो लोग वचन को विश्वास में पकड़ लेते हैं और कहते हैं, यस लॉर्ड, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो, ये बातों को मैं होता हुआ देखना चाहता हूं। जो बातें आज मैं वचन से सुन रहा हूं, मैं इसको होता हुआ देखना चाहता हूं। जब आप प्रार्थना करते वचन के आधार पर, प्रभु आकर वचन को पूरा करता है। इसलिए तो सुनो मेरी बात ध्यान से, ओल्ड टेस्टमेंट प्रॉफिट्स के द्वारा प्रभु वचन भेजता रहा।
वचन भेजता रहा। सुनो, जगत का मेमना आएगा। सुनो, परमेश्वर तुम्हारे पापों को हमेशा के लिए दूर कर देगा। परमेश्वर वचन को भेजता रहा, वचन को भेजता रहा, और फिर नए नियम में खुद वचन को पूरा करने के लिए आ गया। दिस इज व्हाट इज द बाइबल। बाइबल बताती है वो वचन को भेजता है, और जो पकड़ लेते हैं वो आकर वहां वचन पूरा करता है। बी वाइज, वचन से अपने आप को नजरअंदाज मत करो, वचन को ऐसे ही हल्का करके मत लो। अपने बिगड़े हुए परिस्थिति में परमेश्वर से वचन मांगो, अपने बिगड़े हुए हाल में परमेश्वर से वचन मांगो। ये परमेश्वर की दया है, हमारे बिगड़े हुए हाल में वो वचन को भेजता है। आपको मालूम, दूसरा इतिहास इसके 36वें अध्याय के 15 वचन में लिखा है कि पर यहोवा ने अपने धाम के लोगों पर तरस खाया, अपने लोगों पर तरस खाया, और अपने दूतों को भेज भेज कर अपना वचन उन तक भेजता रहा। परमेश्वर अपने सेवकों को भेजता है, परमेश्वर अपने वचन को भेजता है, क्योंकि वो अपने लोगों पर तरस खाता है। मगर वचन कहता, लोगों ने सेवकों का ठट्ठा उड़ाया। कैसे प्रचार करते हैं, क्या बोलते हैं, अरे क्या चीजें हैं। लोगों ने नाना प्रकार की बातों से ठट्ठा उड़ाया, मगर बाइबल का वचन है, कहता है दे मिस्ड द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। क्योंकि वो समय परमेश्वर उनको वचन दे रहा था, ताकि परमेश्वर का प्रेजेंस आकर वो वचन को उनके लाइफ में कंप्लीट करने पाए। बट उन लोगों ने उन चीजों को तज दिया, चुक गए। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, वचन को पकड़ लो। ये जो वचन आ रहा है, पकड़ लो। सो यीशु मसीह पहाड़ पे से बोल रहा था, और आवाज तराई में जा रही थी। वाह! जब यीशु बोलता है ना, वो सिर्फ कानों में नहीं, आपकी तराइयों में तक उसका आवाज घुसता है। आपके लाइफ के तराइयों में परमेश्वर की आवाज प्रवेश करती है। इसीलिए तो बाइबल कहती है, वचन गूदे गूदे को चीरता हुआ अंदर जाता है। वो आपकी तराइयों में, कहा डीप डाउन जहां हर्ट पलता है, डीप डाउन जहां दुख पलता है, डीप डाउन जहां बीमारी ने अपना समावेश बना के रखा है, वचन परमेश्वर का वहां घुसता है। और जब आप उसे पकड़ लेते हो तो वो दो धारी तलवार के नाई फाड़ के रख देता है। हालेलुया! आज ये वचन आपके जीवन में ऐसा ही काम करे। ये कोढ़ी व्यक्ति सुन रहा था, और इसके अंदर विश्वास जागृत हो गया कि मुझे इससे मिलना ही पड़ेगा। यदि इससे मिल लिया ना तो मेरी परिस्थिति सुधर जाएगी। मगर ये कोढ़ी व्यक्ति को दो बातें है रोकती है। यही दो बातें आज समाज के लोगों को भी यीशु के पास आने से रोकती है। ये कोढ़ी व्यक्ति जान गया, मुझे जो भी चाहिए वो यीशु के पास है, मगर यीशु के पास जाने नहीं पा रहा, क्योंकि दो बातें रोक रही है। नंबर 1, ध्यान से सुनना, नंबर 1 उसको रोक रहा है समाज का डर। क्योंकि यीशु मसीह के और उसके बीच में लोग बैठे हुए गए, जिन्होंने एक नियम ठहराया, बताया कि ऐसा कोढ़ी व्यक्ति यदि आ जाए तो उसे पथराव करके मार डाला जाए। समाज का डर, मार डाले जाने का डर। आज बहुत तेरे लोग हैं जो सत्य को जानते हैं कि यीशु के अलावा कोई प्रभु नहीं है, जो जानते हैं यीशु के पास सारे जीवन की बातों का इलाज है, मगर फिर भी वो यीशु के पास आते नहीं है, क्योंकि उनको समाज के डर ने रोक कर रखा है। वे सत्य को जानते हैं मगर आते नहीं है, क्योंकि समाज से डरते हैं कि कोई मार ना डाले। वो डरते हैं कि जायदाद प्रॉपर्टी से बेदखल ना कर दिए जाए। इस कोढ़ी आदमी को भी समाज का डर रोक रहा था। नंबर 2, ध्यान से सुनना मेरी बात। नंबर 2, वो खुद शरीर में इतना कमजोर था कि वो पहाड़ चढ़ नहीं सकता था। सो वीक। आज बहुत तेरे लोग हैं जो अपनी खुद की जिंदगी में इतने कमजोर हैं कि वो जानते हैं यीशु सारे पापों को क्षमा कर सकता है, मगर वे अपने पाप लेके यीशु के पास आते नहीं, क्योंकि वे कमजोर है पाप में। पास्टर बहुत छोटा था ना, तब से बीड़ी हाथ में ले लिया, अब नहीं छूट सकता। पास्टर बहुत छोटेपन से शराब को हाथ में ले लिया, अब नहीं छूट सकता। पास्टर वो पराई स्त्री के साथ बहुत पुराना संबंध हो गया है, अब वो स्त्री को मैं छोड़ नहीं सकता हूं। आपको मालूम, बाइबल का वचन बताता है कि इज़रा
फूट फूट के परमेश्वर के सामने रोने लगा, क्योंकि इजरायली पुरुषों ने पराई स्त्रियों के साथ ब्याह लिया, उनसे बच्चे भी पैदा कर दिए, और अब वे इतने फार चले गए कि वो वापस नहीं आ सकते थे। शादी हो गई, बच्चे हो गए, इतने फार चले गए थे कि वापस ना आ सके। तब एजरा परमेश्वर के चरण पर गिरकर फूट फूट के रोने लगा, और पूरा नेशन वापस लौट के आया, क्योंकि यीशु के चरण पर इलाज है। क्या बता रहा मैं आपको, सुनो। ये दो बातें मनुष्य को रोकती गई, ये दो बातें इस आदमी को भी रोक रही थी, उनके जीवन की कमजोरी और समाज का डर। मगर आज मैं आपसे कहना चाहता, सुनो, ये दो बातें इस कोढ़ी आदमी को ऊपर जाने से रोक रही थी, मगर ये दो बातें यीशु को उस कोढ़ी आदमी के पास आने से रोक नहीं सकती थी। यीशु मसीह ने अपना प्रचार करना बंद किया, और बंद करके यीशु उठ गया, और उठकर भीड़ को चीरता हुआ आगे निकल कर आया, और आगे निकलकर सीधा ये कोढ़ी व्यक्ति के पास आ गया। मुझे बड़ा अच्छा चित्र लगता है, ध्यान से सुनो। वे रोकने वालों से तेज यीशु कोढ़ी आदमी के पास आ गया। यदि आज आपके अंदर डिजायर है ना यीशु से मुलाकात लेने की, हर एक रोकने वाली परिस्थितियों को चीर के यीशु खुद आपसे मिलने के लिए आएगा। आपके हालात में यीशु खुद मुलाकात लेने के लिए आएगा। हर एक रोकने वाली परिस्थितियों को फाड़ के वो आएगा। चिंता मत करो, रोकने वाली परिस्थितियों के लिए चिंता मत करो, यीशु को पुकारो, वो खुद उसे फाड़ के आपसे मिलने के लिए दौड़ा चला आएगा। ध्यान से सुनो, यीशु आगे चला आया। ध्यान से सुनो, जब यीशु आगे चला आया, वो कोढ़ी आदमी ने देखा, कोढ़ी आदमी भी दौड़ के चला आया, और दौड़ के आकर यीशु के चरण पर गिर गया। इस स्टोरी में मैं जब देखने लगा तो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, देख, वो पतरस के चरण पर नहीं गिरा, वो दूसरे बाकी चेलों के पैरों पर नहीं गिरा, वो सीधा यीशु के चरण पर गिरा। वो जाकर पतरस को ये नहीं बोला, पतरस प्लीज यीशु को बोल दो ना, नहीं, मगर वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आया। आज बहुत से लोग हैं जो केवल परमेश्वर के सेवकों से ही विनती करते हैं कि आप प्रभु से विनती करो। हमें रोज कितनी प्रार्थनाएं विनती आती है कि पास्टर आप हमारी परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करो। उन प्रार्थना विनतियों के लिए धन्यवाद, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, सारा अपर रूम चर्च आपके लिए प्रार्थना करता है। मगर सुनो मेरी बात, यदि सिर्फ चर्च प्रार्थना करते रहे और आप खुद प्रार्थना ना करें, आप खुद यीशु के साथ डायरेक्ट डीलिंग में ना आए, तो कहीं तो प्रॉब्लम है। सुनो, मेरे यीशु को घूस देने की जरूरत नहीं है, मेरे यीशु को चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है कि किसी के थ्रू कनेक्शन बनाए यीशु के पास जाने के लिए। यीशु मसीह ने कह दिया, तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुनूंगा। वो डायरेक्ट मिलने वाला परमेश्वर है। अपने परिस्थिति में, अपने बिगड़े हुए हाल में आप खुद पुकारो। आपकी लड़ाई आप खुद लड़ रहे हैं, आपके पास कोई नहीं है, आप खुद पुकारो और कहो, लॉर्ड आई नीड यू लॉर्ड, और वो यीशु डायरेक्ट आपसे डील करना चाहता है। मैं यहां स्टूडियो में से आपको प्रचार कर रहा हूं, मगर आपके घर में पास्टर मोसेस आकर आप पे हाथ रख के प्रार्थना नहीं कर सकता है। यीशु खुद आपसे डायरेक्ट डील करना चाहता है। क्या इसी समय अपने कमरे में आप डायरेक्ट यीशु के चरण पर गिर सकते हैं? क्या इसी समय? हाँ, मैं तो आपके लिए प्रार्थना करूंगा वचन खत्म होने के बाद, बट कैन यू गेट डायरेक्ट विद जीसस? क्या आप खुद यीशु के साथ डायरेक्ट हो सकते हैं और कह सकते हैं, यीशु यदि इस कोढ़ी आदमी को आप छुड़ा सकते हैं तो मुझे डेफिनेटली आप छुड़ा सकते हैं। सुनो, वचन कहता वो दौड़ के आया और यीशु के चरण पर गिर गया और कहता है प्रभु, एक वर्ड लिखा प्रभु, इंग्लिश में लिखा है लॉर्ड। इसका मतलब मालूम उसने डिक्लेयर कर दिया, मेरी परिस्थिति पर तेरी प्रभुता काम करती है। You are Lord over my situation. You are Lord upon my life. He declared it. बिगिनिंग में अभी चंगा नहीं हुआ है, मगर अपने सिचुएशन में लॉर्डशिप डिक्लेरेशन यीशु मसीह का उसने कर दिया। ऑलरेडी चरण पर गिर के कह दिया, You are Lord of this situation. Can you declare the lordship of Jesus?
अपने बिगड़े हुए फैमिली पे, अपने टूटे हुए रिश्ते पर यीशु के प्रभुता की घोषणा आप कर सकते हैं। अपनी बीमारी के ऊपर यीशु के प्रभुता की घोषणा कर सकते हैं। अपने फाइनेंशियल कंडीशन पर यीशु के प्रभुता की घोषणा कर सकते हैं। अपने अकेलेपन पे यीशु के प्रभुता की घोषणा कर सकते हैं। आई वांट टू गिव यू चैलेंज राइट नाउ, अभी इसी समय अपना मुख खोलो और बोलो, आई डिक्लेयर द लॉर्डशिप ऑफ जीसस अपॉन माय हेल्थ। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर एक विजिबल, इनविजिबल, सॉलिड एंड लिक्विड, गैस, सारी चीजें जो भी कुछ मेरे बॉडी में है, सारी चीजों के इम्बैलेंस हुए हुए सारी बातों को मैं कहता यीशु मसीह की प्रभुता मेरे देह पर इसी समय काम करने पाए। मेरी किडनियों पर यीशु की प्रभुता हो, मेरे लंग्स में यीशु की प्रभुता हो, मेरी आंखों में यीशु की प्रभुता हो, मेरे सुनने में यीशु की प्रभुता हो, मेरे सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जिस पे कोरोना वायरस अटैक करता है, यीशु की प्रभुता हो, कोरोना वायरस की प्रभुता ना हो। मेरी किडनियों पर यीशु की प्रभुता हो, मेरे पेनक्रियाज में यीशु की प्रभुता हो, मेरे ब्लड में यीशु की प्रभुता हो। कोई ब्लड प्रेशर नहीं, कोई डायबिटीज नहीं, किसी बीमारी की प्रभुता नहीं, बट टुडे आई डिक्लेयर द लॉर्डशिप ऑफ जीसस अपॉन माय बॉडी। कैन यू डिक्लेयर दैट? यह आदमी के देह पर कोड़ ने प्रभुता लिया हुआ था। मैं नहीं जानता आपकी देह पर किसने प्रभुता लिया है। कुछ है जिनकी देह पर ड्रग्स ने प्रभुता लेकर रखा है, कुछ है जिनकी देह पर शराब ने प्रभुता लेकर रखा है, कुछ है जिनकी देह पर व्यभिचार के स्पिरिट ने प्रभुता लेकर रखा है। नाना प्रकार के दुष्ट के पंजे में आप फंसे हुए हो, उसने प्रभुता लेकर रखा है। बट टुनाइट आई वांट टू डिक्लेयर इन जीसस नेम, आर यू विलिंग टू से दैट आई डिक्लेयर द लॉर्डशिप ऑफ जीसस? मैं यीशु के प्रभुता की घोषणा करता हूं। आपको मालूम, जैसे उस व्यक्ति ने यीशु के प्रभुता की घोषणा किया, कोड़ की प्रभुता खत्म हो गई, कोड़ का लॉर्डशिप खत्म हो गया। आपको मालूम, सुनो मेरी बात, वो कोड़ से भरी हुई हालात में वो यीशु के चरण पर झुक गया। He was a man जिसने अपने देह के कोड़ को यीशु के चरण पर झुका दिया। कैन यू बी अ पर्सन जो यीशु के चरण पर झुकने के समय अपनी गरीबी को साथ में यीशु के चरण पर झुका दे? क्या आज अपने साथ उन चिंताओं को आप यीशु के चरण पर झुकाने के लिए तैयार है? क्या आज अपने साथ आप अपनी बीमारी को यीशु के चरण पर झुकाने के लिए तैयार है और यह कहने के लिए तैयार है, कोड़ का लॉर्डशिप नहीं, शराब की प्रभुता नहीं, व्यभिचार की प्रभुता नहीं, मगर परमेश्वर की प्रभुता। आई डिक्लेयर द लॉर्डशिप ऑफ जीसस ऑन माय लाइफ। दैट्स द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस मैन। उसने याजक से नहीं बोला था ये चीज, क्योंकि उसको मालूम था मेरे सिचुएशन पे याजक की प्रभुता काम नहीं करेगी, मगर वो जान गया किसकी प्रभुता काम कर सकती है, और उसने यीशु की प्रभुता को आमंत्रण दिया, इनवाइट किया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, विश्वास में रिसीव करो। द मोमेंट ही डिक्लेयर द लॉर्डशिप ऑफ जीसस, उसने यीशु को परमिशन दे दिया, तू जो चाहता वो कर ले। एंड सेकेंड लाइन कहता, यदि तू चाहे तो मेरा कोड़ दूर हो सकता है। सेकेंड चीज उसने किया, नंबर वन प्रभुता प्रभु के ले लिया, और नंबर टू उसने कह दिया, यहां से आगे मेरी इच्छा नहीं मगर अब तेरी इच्छा पूरी हो। देख यीशु, मेरी इच्छा के चलाए चल के मैं कहां आ गया, मेरे समझ का सहारा लेकर मैं कहां आ गया। कोड़ से, परिवार से दूर हो गया, अपनी इच्छा के चलाए चल के परिवार टूट गया, अपनी इच्छा के चलाए चलते शरीर बर्बाद हो गया, नशाखोरी में चला गया, अपनी इच्छा के चलाए चल के बीमारी का डेरा बन गया है। देख, अपनी इच्छा के चलाए चलते हुए सब कुछ मैंने गमा दिया, लाइफ बर्बाद कर दिया है। मगर आज इस बर्बादी के जीवन को तेरे चरण पर झुकाता हूं और ये कहता, लॉर्ड मेरी नहीं, यहां से आगे तेरी इच्छा पूरी हो। आई सरेंडर टू यू। यहां से आगे तेरी इच्छा पूरी हो लॉर्ड, आपकी इच्छा पूरी हो पापा। और जिस क्षण उसने कह दिया, मेरा यीशु तुरंत हाथ बढ़ा के कहता है, मैं ये चाहता हूं कि तू चंगा हो जाए। वाह! आपको मालूम, ये वो प्रभु है जो कहता है,
मैं अंत में तेरी आशा को पूरी करूंगा। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, जो कल्पना मैं तेरे विषय करता जानता हूं, अंत में मैं तेरी इच्छा को पूरी करूंगा। दिस इज अ गॉड जो आपके डिजायर को पूरा करना चाहता है, आपके डिजायर को। बट आई वॉन्ट टू इनकरेज यू, आर यू विलिंग टू कम ऑन हिज फीट? क्या आप उसके चरण पर आने के लिए तैयार हैं? दुनिया समाज की बातों को छोड़कर, दुनिया को भूलकर क्या उसके चरण पर गिरने तैयार है? जैसे यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ, उसी क्षण वो चंगा हो गया। और जैसे चंगा हो गया ना, सुनो मुझे चित्र दिखाई देता, इतना बता के वचन बंद करूंगा। यीशु ने कहा, जा जाके याजक को बता। और ये आदमी उठा। मैं नहीं जानता शरीर के अंग खराब हो गए थे, वो वापस रिस्टोर हो गए क्या, वापस से सारी चीजें ठीक हो गई क्या? मगर मैं देखता हूं, याजक के पास गया, जो भी चीज किया, मगर मुझे ऐसा चित्र दिखाई देने लगा, पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा था, उसकी पत्नी उसके लिए भोजन बना रही है, शायद रोटी बना रही है और किचन में काम कर रही है, और दरवाजे से सडनली उसका पति उसे आवाज देता है। मैं नहीं जानता किस तरीके से आवाज देता होगा, मगर अपनी पत्नी को आवाज देता है। और जैसे आवाज देता, पत्नी सकपका जाती है कि मेरे पति का आवाज मुझे कैसे सुनाई दे रहा। मुड़ के देखती है तो पति दरवाजे पर है। अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर सकती कि मेरा हस्बैंड दरवाजे पर खड़ा है। तुरंत उसको देखती, कहती तुम कैसे इधर आ गए, तुम इधर आ नहीं सकते, किसी ने देखा तो नहीं, कोई तुम्हें मार देगा। मगर पति कहता, कोई मारेगा नहीं, क्योंकि किसी से मेरी मुलाकात हो गई है, उसने मुझे चंगा कर दिया है। एक मुलाकात मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया, मेरी सेहत को, एक ही मुलाकात ने मेरी सेहत को चंगा कर दिया। एक ही मुलाकात ने अब कोई मुझे कोड़ी नहीं बोलेगा, मेरी पहचान को बदल के रख दिया। एक ही मुलाकात ने मेरे परिवार को मुझे लौटा के दे दिया। एक ही मुलाकात ने मेरे रिश्ते परिवार लौटा कर दे दिया। मैं विश्वास करता, अब वो समाज में जा सकता है, अब वो फिर से नौकरी के लिए जा सकता है, कमाई का रास्ता बना सकता है। अब वो अकेला नहीं है, घर परिवार के लोग सब एक साथ आ गए। अब वो जेल में नहीं है अदृश्य, मगर वो आजाद हो गया। एक ही मुलाकात ने सारी समस्याओं का हल कर दिया। आई प्रे वो एक मुलाकात जो इस आदमी के साथ हुई, वो आज आपके साथ हो जाए। मेरे पापा, वचन सब बोलना व्यर्थ है यदि वचन के बाद आपकी मुलाकात ना हो। पापा, आई प्रे लॉर्ड, विजिट योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों से मुलाकात लो पिताजी। आप उनकी टूटी हुई दशा को जानते हो। क्यों कोई मरना चाहता है, क्यों कोई मन में ये सोचता है ये जीवन क्या काम का, यदि मैं मर जाऊं तो अच्छा है। टुडे आई प्रे लॉर्ड, रिलीज योर लाइफ, अपने लाइफ को रिलीज करो, रिस्टोर देम व्हाटएवर दे हैव लॉस्ट। जो भी उन्होंने खो दिया, आज आपके प्रेजेंस में, आपके एक स्पर्श में सब कुछ लौटा ले आने पाए, सब कुछ लौटा ले आने पाए। इन जीसस नेम टेक इट बैक, इन जीसस नेम रिसीव इट बैक। मेरे यीशु उस अस्पताल में उनसे मुलाकात लो, मेरे यीशु उस कमरे में उनसे मुलाकात लो, यीशु उस बिगड़ी परिस्थिति में उनसे मुलाकात लो। विजिट देम, विजिट देम। हजारों लाखों लोग जो आज इस वचन को सुन रहे हैं, आई प्रे लॉर्ड विजिट एवरीबॉडी ओ फादर लॉर्ड। अपने वचन को भेज दिया आपने, अब आप मुलाकात ले लो पापा, ताकि आपके बच्चे इस अदृश्य जेल से आजाद हो, ताकि आपके बच्चे आपके चरण पर इलाज को पाने पाए, एक गहरी शांति आपके अनुग्रह में उन्हें मिलने पाए। आज मैं प्रार्थना करता, दया करो पवित्र आत्मा, केवल लोगों के कानों पर वचन नहीं, मगर पवित्र आत्मा वो आपकी उपस्थिति को महसूस करने पाए, आपकी संगति को महसूस करने पाए। आज का दिन आपके बच्चों के लिए सच में छुटकारे का दिन होने पाए पिताजी। ये प्रार्थना यीशु में आपके नाम से मांगता हूँ, आमीन। यदि आज तक आपने अपना जीवन यीशु को नहीं दिया है, ये सबसे सुंदर समय है कि आप अपना जीवन उसके हाथ में दे दे, और ऐसा परमेश्वर जो सारी बातों का इलाज करता गया, आप उससे वंचित ना रहे। प्रभु आपको ब्लेस करे, आमीन। हम आशा करते हैं कि आज की वचन से आपने आशीष पाई। If you have any prayer requests, testimonies, or just need counseling,
then our contact details are on your screen. If you would like to be a financial partner or sow a seed, then our account details are on your screen. Till next time, stay blessed and stay safe. Bye.